Good morning, everyone. So, today we shall be learning direct and indirect, right? So, you people open your grammar book, keep a pencil, and follow me so that we can cover this topic as soon as possible. 139 page number. I appreciate the efforts people have taken in sending me the videos, and I would request them to be sincere and active in doing so that they may take part more in the forthcoming activities. For now, let's take up the chapter direct and indirect speech. So, basically, what is a direct speech? When we quote these, when we quote the language, when we quote the statement, when we say the things spoken by the other person as it is without making any change in their speech or statement, right? Um, so that is called as a direct speech, and the same is written here. When we report the exact words of the speaker and write them within inverted commas, it is said to be indirect speech. Okay, so Neha said Roger Federer has won the match against Rafael Nadal. Now, when Neha said this, so the part said by Neha is already kept in two commas. These commas are not called as commas but inverted commas, right? Quotation marks. And the punctuation mark which you can see after the word SAID, this is called as COMMA, comma. Hope you people are aware of this much at least. Now have a look how when we proceed toward knowing this topic, how we will go forward. Firstly, we need to look at as told that what is a direct speech, and then basis on the basis of this notion that what is a direct speech, I hope you people can now tell what is an indirect speech then. Anyone? And whosoever will say will open his her camera and will say the answer. Be quick. I'll be going with a pace, so will not be waiting much for your response. So be quick. Hmm, hmm, hmm. In indirect speech, the whatever is said by the speaker is said in our own words. Is said. Yes, ma'am. है ना? It is not said, Shikha. All right. So we add our own version, how that person said what and with what like emotion and information. Correct. Right. So there are two bold parts in changes in tenses. When the reporting verb is in the simple present or simple future tense, the verb in reported speech does not change. Okay, so do you know what is a reported speech? The part which is kept inside the double inverted commas is the reported speech. And what is the reporting verb? The verb which is written just after the noun or pronoun. This reporting verb is usually mostly found outside the quotation marks. You're aware of this? I'm asking. Yes, ma'am. Right. So, have a look at the table. The reporting verb is in the past tense. How do we know it is a past tense? Because of the structure of the verb. Say will look like said and tell will look like told. Then it is a past tense. So, is, am, are will be converted into was, were.
Likewise, was, were, had been. Had been will get change or not. There will be no change. Okay. So similarly, go through this tabular format, है ना? And quickly have a look, read it on your own. Then I will take up important facts part. Wherever you are, in whatever corner, under whatever object, just read it. अभी मैं आपको read करने का time दे रही हूँ. Hmm. So most of the things are looking familiar, right? When the verb in the indirect speech does not change in two tenses, basically here, as of the table, if you talk about past perfect does not change in indirect speech, and past perfect continuous also does not change. And then when we are referring to any universal truth or habitual action, then too the verb of the or the tense shall remain same. Clear it? Yes, ma'am. Hmm. So important fact says there are three situations in when even if the reporting verb is in the past tense, we do not change the tenses in the reported speech, right? Um, right. So these three examples are the ones which we were just talking. The teacher said to us, water boils at 100 degrees Celsius. Here, the direct speech is displaying a universal truth. So the teacher told us, said to us will get changed into told us, right? इतना क्लियर होना चाहिए, है ना? said to us यानी कि ऑब्जेक्ट है वहां पे. अस आपका ऑब्जेक्ट हो गया said का, है ना? So वो आपका told हो जाएगा and the thing will remain same. Why? Because there is a universal truth. Have a look at the next one. Reena said to me, Neha was tired, so she did not go out to play with friends. Okay. Now, Reena said to me, Neha was tired, so she did not go out to play with friends. Reena told me that Neha was tired, so she didn't go out to play with friends. Hmm. So, who will explain this to me? The reported speech has two clauses, both in the past. Anybody? What changes have taken place in the indirect speech? The reporting verb has changed to told. And क्या गर्विका बेटा फिर से बोलो. Hmm. Reporting verb has been changed, right? What about the rest of the part, everyone? Ma'am, it's the same. Hmm. The rest of the part, if you look at the direct structure, what is the name of the tense? Neha was tired. So
She didn't go out to play with friends. So Neha was tired. Is it a clause? Is this part a clause? पहला सवाल तो ये मैं पूछ रही हूँ. Yes. Answer should be yes, without any doubt. भाई क्लॉज क्या Yes, होता ma'am. है ना? क्लॉज की परिभाषा क्या है? वो हाउ डू वी डिफाइन अ क्लॉज? A part of sentence which have subject and verb. Can it exist on its own? If yes, then it is a clause. Firstly, very vague example. है ना? Then, if you look at the conjunction here, so is the conjunction acting here. She didn't go out to play with friends. What is the tense used in this part of the clause? Again, is this a clause? From starting from she to friends. She didn't go out to play with friends. Is it a clause? Is it conveying an info on its own? Yes, ma'am. Yes, no. Yes, ma'am. गुड. तो ये दोनों, Yes, ma'am, it is. है ना, तो दोनों ही क्लॉजेस हमारे सो से कनेक्टेड हैं और इन दोनों ही क्लॉजेस का जो टेंस है वो पास्ट है कि नहीं है? Yes, ma'am. सो इसमें कोई Yes, ज्यादा ma'am. चेंज आपका पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. ऑल राइट, अब तीसरे पे आओ. द रिपोर्टेड स्पीच डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन विच स्टिल एग्जिस्ट व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड. The reported speech describes a situation which still exists when the speech is reported. Okay, so what is, let's have a look at the situation. Mr. Gupta said all the flights are delayed due to heavy rains. Okay. Now look at the line written just below important facts. What we are going through at present. Why are we studying these examples and under what category? There we are undergoing the situations in which even if the verb which is existing outside of the quotation mark, which we call it as a reporting verb, says, tell, है ना, अगर ये past tense में है, if this verb is in the past tense, we do not change the tenses in the reported speech. रिपोर्टेड स्पीच में जो कॉमा के अंदर है उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे. तो वो कौन सी सिचुएशंस हैं, हम उन सिचुएशंस को पढ़ रहे हैं. चेंज किस में नहीं होगा? रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं होगा या रिपोर्टेड स्पीच में नहीं होगा? Reported speech. Reported speech. Ma'am, reported speech. क्या होती है रिपोर्टेड स्पीच? कैसे पहचानेंगे? कैसे बताओगे मुझे? Ma'am, it is written inside inverted Ma'am, commas. it's It written is inside inverted inverted commas. comma. Ma'am, it is inside the double inverted commas. क्लियर है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस एक टॉपिक पे कमांड करने के लिए आपको बस थोड़ा सा अपना कॉग्निटिव जो है ना थोड़ा सा स्ट्रांग रखना पड़ेगा. कॉग्निशन, कॉग्निटिव यानी कि जो मेंटल से रिलेटेड है, यानी कि जो रूल्स हैं उसे आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा. कहीं आप मिस हो गए और फिर आपके दिमाग से वो बात स्किप हो गई तो फिर आपके एरर करने के चांसेस वहीं पे बच्चों के बढ़ जाते हैं. और कोई बात नहीं है इसमें. मिस्टर गुप्ता, Mr. Gupta said all the flights are delayed due to heavy rains. Mr. Gupta said that all the flights are delayed due to heavy rains. ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है भाई? What is Mr. Gupta saying? Is that thing still existing or is that thing, like no more in existence? The situation still. Ma'am, it still exists. यस, वो जो फ्लाइट्स डिले हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? भारी बारिश की वजह से, ड्यू टू हेवी रेनफॉल्स. तो अभी वेदर, व्हाट द स्टेटमेंट से जो हमें समझ में आ रहा है बेटा, वो अभी अभी भी वो सिचुएशन क्लियर नहीं है. बारिश अभी भी हो रही है, फ्लाइट्स अभी भी डिले हो रही हैं, इसलिए हम यहाँ पे जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो हमारा टेंस चेंज नहीं होगा. कहाँ पे नहीं होगा? कहाँ पे? Reported speech. Ma'am, inside the double inverted commas. यस, इनसाइड द रिपोर्टेड स्पीच. क्लियर है सबको?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ ऋतु बताओ. I mean, see, Mr. Gupta said should be changed into Mr. Gupta told, but it is same here. अच्छा. अच्छा ऋतु, वेरी गुड. ये बताओ कि यहाँ पे टोल्ड क्यों होना चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगता है? वो किसी और से कह रहे हैं क्या? भाई टोल्ड का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिटरल मीनिंग बताना, यस और नो? Yes, ma'am. करेक्ट ना? तो अब देखो उसको पढ़ो दोबारा. मिस्टर गुप्ता ने कहा, क्या कहा? ऑल द फ्लाइट्स. ठीक है, वो एक तरीके से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एक इन्फो दे रहा है बंदा. ठीक है, क्या इन्फो दे रहा है? कि जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो डिलेड है. क्यों? भारी बारिश की वजह से. तो वो किसी एक खास व्यक्ति से बात करता हुआ नजर आ रहा है? Yes, ma'am. क्या यस मैम? किससे बात कर रहा है वो? No, ma'am. मेरे मतलब मेरा मेरा पॉइंट समझ रहे हो तुम? अब अगर वो पर्टिकुलर पर्सन से बात नहीं करेगा तो हम लोग टोल नहीं लगाएंगे. हम इसे एक फैक्टर यहाँ पे ले सकते हैं, ये मैं कह रही हूँ, है ना, क्योंकि एक जनरल स्टेटमेंट वो पास कर रहा है, तो यहाँ पे हम टोल नहीं लगाएंगे. Yes, ma'am. ठीक है, आगे बढ़ू मैं? Yes, ma'am. चलो. Yes, ma'am. से एंड टेल. से एंड टेल में क्या है? वी ऑलवेज से समथिंग बट वी टेल समबडी. चलो इससे भी तुम इन्फर ले लो. ठीक है, देखो ये तुम्हारी वाली बात हो गई यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा डाउट और तुम्हारा गॉन हो जाएगा. क्या है? रीना सेड दैट शी वाज रीडिंग अ बुक. अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा हिडन है, लेकिन अगर तुम फिर भी डाउट करना चाहो तो तुम कैसे कर सकते हो? लेकिन मैम, कैसे मैम? आपने तो बोला कि यहाँ पे पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम सेंटेंस को देखें तो देखो, ये जो बात है ये किसी को कही जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कही जा रही है कि नहीं? व्हाट आर यू डूइंग रीना? आई एम रीडिंग अ Yes, बुक. ma'am. है ना? तो कई बार हमें बेटा सेंटेंस, ये चीजें पता है, अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाएगा माइंड में, फिर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कभी दिक्कत नहीं होगी. या फिर वो जो फिलअप्स आते हैं, या फिर वो जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे इज आएगा, एम आएगा, शैल आएगा, शुड आएगा, मे आएगा, माइट आएगा. वो इसीलिए क्योंकि जब आप सेंटेंस को देखते हैं तो आपको काफी चीजें पता चलती है कि हमें जो व्हाट रूल्स वी नो, व्हाट इज द कंटेक्स्ट हियर, यहाँ पे फॉलो कौन सा हो रहा है, और सेंटेंस पे हमें देखना है कि सेंटेंस क्या कह रहा है. सो रीना सेड दैट शी वाज रीडिंग अ बुक. रीना टोल्ड मी दैट शी वाज रीडिंग अ बुक. है ना? यहाँ पे कहीं ये नहीं है कि रीना सेड टू मी, है क्या? Yes. No, ma'am. No, है ना? ma'am. है ना? तो यहाँ पे ये चीज हिडन है. ऑलराइट. तो ये चीजें समझने वाली है, जितना हम लोग और ड्रिल करेंगे चीजें और क्लैरिटी के साथ आएंगी. चेंजेस इन वर्ड्स रिफरिंग टू टाइम, प्लेस और पोजिशन. So have a look. Here will get change into there, this, that, these, those, tomorrow, the day after, या फिर the following day, today, that day, yesterday, the day before, the previous day, tonight, that night, 2 days ago, 2 days before, last week, the previous week. ठीक है? Likewise, all the examples are given. Now take a minute and we shall discuss the exercise A.
आपका नेक्स्ट पीरियड किसका है? Okay, okay, yes. She's on leave today actually. So let me see. Wait. Let me check the substitution. मैं इसको कंटिन्यू करूं क्या थर्ड पीरियड में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभिषेक सर का सब्स्टिट्यूशन है, बोलो पढ़ोगे तो मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, एल्स तो आई हैव टाइम. Ma'am, will. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक ठीक है, चलो सॉल्व किया कुछ? Yes, ma'am. अच्छा, रुको, आई आस्क यू पीपल. Maya told Ruby it was like the story. That the Maya told something. चलो, tell me the answer of third one. पूनम ने हैंड रेज किया है, आप लोग भी हैंड रेज करिए. हैंड रेज कैसे देखेंगे? ओ ओ आरव, तुम भी हो क्या क्लास में? Yes, ma'am. क्या बात है, आज तो मैम का डे बहुत लकी है. हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन? आ गए? आ गए आप? चलिए बढ़िया है, चलो आंसर करो. Ma'am, the first one. नहीं, मुझे चाहिए थर्ड वन, ट्राई करो. Yes, ma'am. Ma'am, Maya told Ruby that the boys had liked the story that was narrated the previous day. थोड़ा इसमें और चेंज हो सकता है. माया टोल, अच्छा रुको, चलो ठीक है, आरब का ये रिस्पॉन्स है. और बताओ भाई, रितु तुम बताओ. Maya told Ruby that the boys liked the story that was narrated the day before. अच्छा, बहुत बढ़िया, तुम लोग तो बहुत ही पढ़े लिखे हो भाई. रुको, थोड़ा सा और जाओ तुम लोग, और अब तुम लोग आ जाओ पेज नंबर 139 के टेबल पे. ठीक है, सब आओ. और यहाँ पे देखो तुम लोग, इज एम आर है तो वॉज वर में होगा, वॉज वर है तो किस में होगा? Had been. तो ठीक है, थोड़ा सा और जो चेंज होगा ऐसे करोगे. ठीक है, समझ पा रहे हो ना मैं कहाँ हाईलाइट कर रही हूँ? तो अब ये होगा क्या? अब आई विल गिव अ चांस टू अ गर्ल. शाश्वत गुप्ता जी है हमारे साथ. Yes, ma'am. बताओ शाश्वत, अब क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? होना नहीं चाहिए, क्या हो सकता है अभी? आपने दोनों बच्चों के रिस्पॉन्सेस सुने शाश्वत? Yes, ma'am. हाँ, तो अभी आप अपना वर्जन बताओ जरा. Ma'am, actually, it's the same. The table tool is the same. Ma'am, there is no change in this according to me. फिर भी आप, Ma'am, may I? नहीं, अभी उसको बोलने दो. ये एक तो ये मेरा भी सेम है, मेरा भी सेम है, ये मैम को समझ में नहीं आता है, तुम बोलो. माया टोल्ड Yes, रूबी, ma'am. क्या होगा? Ma'am, Maya told Ruby that the boys had liked the story that had been narrated the previous day. दैट, That had been narrated the previous day. हम्म, वो तो ठीक है. हाँ भाई बताओ, शिखा तुम बताओ. Maya told Ruby that the boys liked the story that had been narrated the previous day. ये होगा, ठीक है, लाइक्ड ही रहेगा. ओके, आपका जो मेन चेंज होगा वो होगा वॉज की जगह हैड बीन,
or previous day. Maya told Ruby that the boys liked the story that had been narrated the previous day. ठीक है, अब आप लास्ट वाला लीजिए सब लोग. अब मैं उनसे पूछूंगी जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया. द कॉम्पियर announced the chief guest will reach here any moment. कौन कौन है? आदित्य, आराम से बोलना आदित्य तुम. ठीक है, बताओ. Ma'am, the answer would be that the computer announced that the chief guest would be there any moment. तो यहाँ पे अनाउंस्ड के बाद कॉमा हट जाएगा. दैट विल कम एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय वुड. सिमिलरली हेयर विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर. किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, अब एक और लेते हैं. गर्विका, वो क्लास में? अच्छा, कोई बात नहीं. कोई भी आंसर कर दे. फोर्थ वाला आंसर करो. सिंपल है, बहुत सिंपल है. नहीं, फोर्थ मत करो, फिफ्थ करो, फिफ्थ करो. एंजल द्विवेदी, Yes, ma'am. शुरू हो जाओ. Chemist told the customer that Nissan always checks the expiry date of mm, मेडिसिन. medicines that are sold. ठीक है, यहाँ पे एंजल हम यहाँ पे ऑलवेज के बाद क्या लिख रहे हैं? चेक्स लिख रहे हैं क्या? Ma'am, checked. चेक क्यों लिख रहे हैं एंजल? क्या कहोगी? Ma'am, हाँ, ट्राई करो, ट्राई करो, सिंपल है. मैम, टेंस चेंज होगा. चेक्स कौन से फॉर्म में है? चेक्स का तुम मुझे टेंस बताओ. पूनम, चेक्स का टेंस बताओ. ये देखो, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? क्या तुम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर कहां से मैं समझाऊंगी तुम लोगों को? है ना, चेक्स का टेंस. अनुष्का, अरे रुको, कोई ऐसे बोलेगा नहीं बीच में. अनुष्का, अनुष्का कौन है? अनुष्का सिंह. अनुष्का, चेक्स का टेंस क्या है बच्चे? कमाल है, सब भूतों की तरह हैंड रेस करके रखते हैं, पूछने पे कोई बोलता ही नहीं है. सचिन, आदित्य, तुम्हारी तबीयत कैसी है अभी? ठीक है. आज मैं किसी किसी को आज मैं कैमरे के लिए नहीं बोल रही हूँ. अभिनव, चेक्स का टेंस क्या है भाई? Ma'am, simple present. नहीं एंजल, गलत. प्रेजेंट नहीं बोलोगे. प्रेजेंट बोलोगे तो सरासर गलत. प्रेजेंट हैज 4 काइंड्स ना, तो आपको बोलना चाहिए था उसी टाइम मैम सिंपल प्रेजेंट. तो मैम ये सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा सिंपल पास्ट. ओके एंजल? हाँ, Excuse me, ma'am. बोलो. Ma'am, but habitual actions don't change. अरे बाबा, अभी यहाँ पे हैबिचुअल का तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं. अभी तो वो सेंटेंस को तुम जाओ जहां पे हम लोग, मैं और एंजल डिस्कस कर रहे थे अभी सबके साथ, है ना. चेक्स का चेक्ड हुआ, क्यों हुआ? दैट आई आस्क्ड हर. देन आई आस्क्ड हर व्हाट इज द टेंस ऑफ चेक्स. अंडरस्टूड? Okay, ma'am. हाँ, वो जब आप कोई सेंटेंस फ्रेम करोगे, देन इफ इट इज अ हैबिट, सो इट विल रिमेन सेम. है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को. ठीक है. Ma'am, so what is the answer? किसका? Fifth one. अरे तो उसने बताया तो सही, तो बताया उसने. द केमिस्ट टोल्ड द कस्टमर दैट नितिन ऑलवेज चेक्ड, ठीक है, द एक्सपायरी डेट ऑफ मेडिसिन दैट वर सोल्ड.
सुना? समझ आया? अच्छा ठीक है, इतना लंबा साइलेंस है तो मैं लेके चलूंगी कि समझ में आ गया, और नहीं आया तो हम बाद में इस पे और चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, ma'am. Now the topic says change in personal pronouns and possessive adjectives. ठीक है, so pronouns in the third person and their possessive adjectives do not change where in reported speech. अच्छा, so थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, पहले तो मैं यही पूछ लूं आप लोगों से। प्रोनाउन के फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन पे भी हम बातचीत करेंगे, और कोई पक 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 शुरू नहीं होगा, है ना? अनिकेत, तुम हो? आर यू हियर? भाई तुम्हारी कॉपी रखी है मेरे पास इंग्लिश की, ऐसे बोलोगे तो फिर तो मैं दे नहीं पाऊंगी तुम्हारी कॉपी। आर यू देयर इन क्लास और नॉट? चलो ठीक है, समझ गई मैं। तो भाई कौन बताएगा? आरव? चलो कोई भी आंसर करो। प्रोनाउन के देयर आर थ्री पर्सन्स इन प्रोनाउन, ठीक है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? Ma'am, the one who speaks. तो एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल। Ma'am, it's singular, it will be I. गुड, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होगा बेटा? आई। लिख लो, टेक अ पेंसिल, राइट इट। ये ऐसी बेसिक चीजें हैं कि बड़े बड़ों लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं, और इफ दे आर नॉट इन प्रैक्टिस। सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, और इसका प्लूरल क्या होगा? व्हाट इज अ प्लूरल? सॉरी, प्लूरल। करेक्ट, करेक्ट। So accordingly you people, I think now you know the answers of second person pronoun क्या होता है? you, plural you, Yes. है ना? थर्ड पर्सन Yes, ma'am. he she it। अरे वो तो ठीक है, थर्ड पर्सन कौन होता है? एंजल ने लिखा है मैम जो दूसरों से बात कर रहा है। आई नो आई नो आई नो। हाँ, ये आप जो बता रहे हो ना बेटा, ये तो और नेक्स्ट लेवल का ये कॉम्प्रिहेंशन है, यानी कि आपको क्लियर है। यानी कि आप जब कभी सेंटेंसेस पढ़ेंगे, या इफ यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी कंटेम्प्रेरी नॉवेल और नोवेला और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, देन यू विल बी ऑलवेज यू नो लाइक अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। आप लोगों को स्टोरी समझ में आएगी, वरना लोगों को समझ नहीं आता कि कौन बोल किससे रहा है। ओके, सो थर्ड पर्सन ही शी इट, प्लूरल दे। अब आ जाओ तुम लोग। So the first example, she said he likes Mughlai food. ठीक है, so इसका what is the indirect? She said that he likes Mughlai food. ठीक है, तो अब इसको हम कनेक्ट करेंगे रूल से। रूल क्या कह रहा है? प्रोनाउंस इन द थर्ड पर्सन एंड देयर पजेसिव एडजेक्टिव्स। अच्छा, ये चेंज नहीं होंगे रिपोर्टेड स्पीच में। तो क्या इस रूल ने is the sentence following the rule? If yes, then how? Yes, Khushi. Ma'am, the sentence, the third person of pronoun is he, so it does not changes when we convert into direct speech, and the possessive adjective of the third person is like, so it also does not change when we convert it into indirect speech. जी आपने क्या बोला? लाइक्स क्या है बेटा? पजेसिव Ma'am, the एडजेक्टिव? adjective, possessive adjective. हे भगवान, नहीं। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है तुमको कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है? Ma'am, it because it describes the likeness of the person. मजा आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार।
अब ये बताओ कि लाइक का लिटरल मीनिंग क्या होता है? देखो भाई, अगर बढ़िया से, एक सेकंड, होल्ड होल्ड होल्ड, एंजल, बढ़िया से यूनिफॉर्म में बैठना है ना, ऐसे तो सभी सो रहे हैं ब्लैंकेट्स के अंदर, तुम्हारा सिर्फ ये 2 eyes 1 nose चिन एंड अपर लिप एंड अब लिप्स भी गायब ऐसे है। हाँ, अब तुम पानी के अंदर चले जाना, है ना? ऐसे बंद करो कैमरा, स्विच ऑफ। तुम लोग को अच्छे से अगर थोड़ा सा अपीयरेंस शो करना हो तभी तुम लोग खोलो। हाँ, तो बच्चे मेरे, ये वर्ब है ना यहाँ पे, ठीक है? लाइक का मतलब क्या होता है? क्या काम हो रहा है? हाँ, काम क्या हो रहा है लाइक करने का? वेट वेट वेट, आई लाइक यू, क्या काम हो रहा है? आई एम लाइकिंग यू, राइट? तो यहाँ पे लाइक क्या है? एडजेक्टिव है कि वर्ब है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा क्या वर्ब है? अब क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोनाउन है इन द थर्ड पर्सन वो क्या है भाई? ही लाइक्स मुगलाई फूड, ठीक है? तो ही का ही मेंटेन्ड है। शी सेड दैट ही लाइक्स मुगलाई फूड, कोई चेंज नहीं है कि नहीं? फूड, फूड कैसा है? थाई है, कॉन्टिनेंटल है, मुगलाई है ना? तो ये रूल फॉलो कर रहा है। कोई डाउट है तो बोलो। प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन, सेकंड एग्जांपल तुम लोग को पढ़ो और उसमें अप्लाई करो। ही सेड हर ड्रेस इज रेडी, इसको पढ़ लेना। प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन, दैट इज यू, and its corresponding possessive adjective your, change into the same person as the object of the reporting verb। थोड़ा सा इसको एक बार अपने मन में भी पढ़ो। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कह रहे हैं? अच्छा वेट, अभी मैं इसको यहीं क्लोज करती हूँ। ये जो वीडियो बन गया है, आई एम गोइंग टू अपलोड इट, ओके? एंड आई एम गिविंग यू ब्रेक ऑफ 10 minutes, ओके? सबको ठीक है? फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसे। यस और नो? ठीक 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 ठीक। Yes, ma'am.